कर दूं स्टार्ट? जी सर कर दीजिए। Okay. So good afternoon, everyone. We are going to start with a new topic today: portfolio selection and management. Just current. Okay. Portfolio selection and management. Now, what is portfolio and why we go for the portfolio? Warren Buffett has rightly quoted that don't put all your eggs in one basket. The main idea behind this is diversification. Why? If you put all the eggs in one basket and the basket falls down, then all the eggs will be destroyed. Therefore, it is better to keep the eggs in a separate basket. Okay. So what is portfolio? Now the main idea behind this quote is the diversification. The investment of the funds in a variety of assets so as to reduce the risk leads us to the concept of portfolio. हम लोग different variety of assets में क्यों invest करते हैं ताकि हम portfolio basically हम क्यों consider करते हैं? Portfolio क्या होता है? Portfolio is basically an investment of funds in a variety of assets. ये variety of assets में क्यों किया जाता है? So as to reduce the risk. अगर मान लीजिए एक आपके जैसे एक कोई भी पर्टिकुलर एक एसेट है उसके प्राइसेस फॉल हो गए और आपका सारा पैसा अगर उसके अंदर ही है तो वो सारा का सारा पैसा एक साथ डूब जाएगा. यू विल इनकर ग्रेट लॉसेस. देयरफॉर इट इज बेटर to invest small amounts. You can allocate small amounts in different portfolio, in different type of assets. This is called portfolio. Okay. Now Now, portfolio is a group of various assets like shares, debentures, bonds, fixed deposits, etc., in which an investor invests his funds to reduce the risk involved in any single investment. एक single investment में risk लेने से की जगह आप different type of shares में debentures, bonds, fixed deposit आप अपने पैसे को allocate करके जब अलग-अलग जगह invest करते हो तो it is known as portfolio. Portfolio management is the process of portfolio. Now we have to look at the portfolio management. What is portfolio management? It is the process of portfolio construction, revision, continuous evaluation of portfolio. मतलब portfolio को construct कर रहे हैं, उसे revise कर रहे हैं और उसे continuously evaluate कर रहे हैं. ये आपका portfolio management होता है. Portfolio management is done with an objective to achieve a return commensurate with the रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर. आप इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग उसके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग जितना उसको रिटर्न मिले, ठीक है, जितना उसकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड उसका रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग जितना रिटर्न होना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपके 5 के जो प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस आ जाता है क्वेश्चन में. Now these are the 5 steps. First is security analysis, then portfolio analysis, portfolio selection, portfolio revision, portfolio evaluation.
सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद द सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी जो है आपका, सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जो अवेलेबल है, आप उनको रिस्क रिटर्न के बेसिस पर जब एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, आप ये सिक्योरिटी एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, देयर आर एन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, उनमें से मान लीजिए कुछ सिक्योरिटीज ऐसी है जिनका रिस्क सेम है बट रिटर्न्स डिफरेंट है, तो यू विल रिजेक्ट द securities with same risk but lesser return. Similarly, there might be securities with same return but different risk. So you will outrightly reject the securities with higher amount of risk. Okay, so this is called security analysis, where you analyze the securities. Then next is portfolio analysis. अब portfolio analysis क्या होता है? सिक्योरिटीज तो एनालाइज कर लिया, उसके बाद पोर्टफोलियो को एनालाइज करना होता है। पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या होगा कि जो आपका पोर्टफोलियो है, सिक्योरिटी आपने एनालाइज कर ली, ठीक है, आपके बहुत सारी सिक्योरिटीज है, मान लो आपने 100 में से 20 सिक्योरिटीज जो है वो निकाल ली, चूज कर ली। अब उसमें से पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? अब 20 सिक्योरिटी से बहुत सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, 2 सिक्योरिटीज को ऐड करके, 3 सिक्योरिटीज को, 4 सिक्योरिटीज को, टिल 10 सिक्योरिटीज में कोई भी आप 20 की 20 सिक्योरिटीज आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपको पोर्टफोलियो को एनालाइज करने का ना। पोर्टफोलियो एनालाइज करने के लिए अगेन आपको जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज कंसिडर करेंगे और उसकी रिस्क एंड रिटर्न को एनालाइज करेंगे। ठीक है, ना अगेन अब आता है कि ये जो है आपका एनालिसिस किस बेसिस पे होगा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे होगा। और व्हाट इज पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न? पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न अगेन हमें कंप्यूट करना पड़ता है, जैसे हमने सिक्योरिटी का रिस्क एंड रिटर्न कंप्यूट किया, वी हैव टू कंप्यूट द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न आल्सो। Portfolio risk and return is different from the risk and return of individual securities. How they are different, that we'll see. देखिए पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। सो पोर्टफोलियो जो आपका रिटर्न है वो उन सारी सिक्योरिटीज के रिटर्न का वेटेड एवरेज होता है। मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में 4 सिक्योरिटीज है, ठीक है, उन चारों का रिटर्न अलग अलग है, ओके, और साथ में मैं उसमें अलग अलग अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आई हैव टू टेक द वेटेड एवरेज रिटर्न, दैट वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज विल गिव मी द पोर्टफोलियो रिटर्न। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस स्टार्ट्स विद द एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। आपका ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है इसकी फाउंडेशन जो है इट वाज लेड बाय हैरी मार्कोविट्ज। हैरी मार्कोविट्ज ने पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न डिफाइन किया था। नाउ मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी इंक्लूड्स बोथ पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सिलेक्शन। इसमें आपकी पोर्टफोलियो एनालिसिस और सिलेक्शन दोनों आ जाता है। तो फर्स्ट वी आर डूइंग विद द एनालिसिस, एनालिसिस के बाद सिलेक्शन वुड बी द अनदर टॉपिक। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न जैसा मैंने आपको बताया इट इज simply the weighted average of the returns of individual securities forming part of the portfolio। जो individual securities portfolio का part form कर रही है उनका जो weighted average होता है that is called the portfolio return। The weight of any particular security is the proportion of funds invested in that security। अब हम जब मैंने कहा weighted average, returns तो इंडिविजुअल आपकी सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे कंप्यूट करते हैं वो हमने ऑलरेडी कल की क्लास में किया था कि हमने रिटर्न्स किस तरीके से कंप्यूट हम कर सकते हैं। अब आपके पास डिफरेंट सिक्योरिटीज के रिटर्न्स आ गए, उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो रिटर्न आप कैसे बनाएंगे? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने हर सिक्योरिटी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर लिया। जो प्रपोर्शन ऑफ फंड आप एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे दैट विल गिव यू द वेट। ठीक है, मान लीजिए 4 सिक्योरिटी आप चारों में इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वेट विल बी 0.25 0.25 0.25 0.25। लेकिन मान लीजिए सिक्योरिटी ए में 20%, बी में 30%, या सिक्योरिटी ए में 10%, बी में 20%, सी में 30% एंड डी में 40% इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट विल बी 0.1 0.2 0.3 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। आपके वेट्स जो है इस तरीके से आएंगे। यानी कि जो आपका फॉर्मूला है therefore the formula for portfolio return can be derived as follows। ये आपका जो है पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला बन जाता है ERP, it shows the expected, E shows the expected return of portfolio is equal to sigma
I इज इक्वल टू 1 to n WI into ERI. आप मतलब वेट के साथ जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आपका बन जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. ERI shows the expected return of the ith security. ओके, नाउ अब हम इसको एग्जांपल के साथ करते हैं. मान लीजिए आपका एक इन्वेस्टर इसने दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटी ए और बी. सिक्योरिटी ए का रिटर्न है 10%, बी का रिटर्न है 15%. अब उसे क्या है 40% इन्वेस्टमेंट करनी है सिक्योरिटी ए में और 60% उसने इन्वेस्टमेंट करी बी में. तो द वेट्स ऑफ ए एंड बी विल बी 0.4 एंड 0.6. जो परसेंटेज है आप उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे. 40 बाय 100 इज 0.4, 60 बाय 100 इज 0.6. तो वो आपके वेट्स आ गए. तो रिटर्न अब हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न मैंने कहा वेटेड एवरेज रिटर्न, यानी कि ए के वेट के साथ ए के रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी के वेट के साथ बी के रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे. ए का वेट है 0.4 और ए का रिटर्न है 10. तो हमने 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस बी का वेट है 0.6 और बी का रिटर्न है 15. तो 0.6 into 0.15. Now 0.4 into 10 is 4% and 0.6 into 15 is 9%. Total will be 4 plus 9, 13%. This is the average return. I hope it is clear to everyone. Now, before moving to the return, I would like to see if anyone has any problem or doubt in this concept. You can ask. Is there any question you want to ask? You can write in the Q&A box. Am I audible now? Mohit is saying you are not audible properly. Am I audible now? Okay, voice का volume up करना है and PPT show हो रहा है या नहीं? Oh, PPT show नहीं हो रहा है तो I'll share again. Just a minute. मैं एक बार mic check कर लेती हूँ. Just a second. It is showing me 100%. Hello. Hello. Okay. I'll just share the screen again. I hope it is visible now. Is it visible now? आपकी screen visible है अब? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है कि PPT visible हो रहा है तो मैं visible नहीं हो रही हूँ. I don't know. Okay, मैं एक बार हाँ quickly प्रभाकर मैं दोबारा से एक बार explain कर देती हूँ. Just a minute.
I think both PPT and me are visible now. But it doesn't matter. मैं visible हूँ ना, आपकी PPT visible होनी चाहिए. So since PPT is visible, we'll move again. Okay. तो क्विकली मैं पीछे जाती हूँ और दोबारा से स्टार्ट करती हूँ. ओके सबसे पहले देयर इज अ कोट बाय वॉरेन बफेट दैट सेज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इसका मेन जो पर्पस है वो है डाइवर्सिफिकेशन. कि आप अगर अपने एग्स का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट जो आपके पैसे हैं दे आर एज डेलिकेट एज एग्स. ठीक है जरा सा भी ठेस लगने से वो बिखर जाएंगे. ठीक है स्पॉइल हो जाएंगे. देयरफॉर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सारे मतलब अपनी एग्स को एक बास्केट में रखने का मतलब क्या है, अगर आप सारे एक एग्स में आपके पास 10 एग्स है और आपने उन 10 एग्स को एक ही जगह पे एक बास्केट में रख दिया और वो बास्केट गिर जाती है तो सारे के सारे एग्स जो हैं वो टूट जाएंगे. ठीक है तो इसीलिए बेटर होता है कि एक जगह ना रख के अलग अलग रखे. दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. सिमिलरली अगर आपके पास पैसा है फॉर एग्जाम्पल किसी ने आज से 3 साल पहले यस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा हो. ओके एकदम से कोई स्कैंडल हुआ और वो यस बैंक के शेयर जो 800 रुपए वाला 12 रुपए पे आ गया. ठीक है तो इसका मतलब जिस बंदे ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यस बैंक में करी होगी उसकी तो इन्वेस्टमेंट डूब गई. ही विल सफर मतलब उसकी जो लाइफ लॉन्ग सेविंग है वो सारी तो गई. इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी सेविंग्स को अपने इन्वेस्टमेंट को एक जगह लगाने की जगह डाइवर्सिफाई करें. उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग जगहों पे लगाएं. ओके अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है पोर्टफोलियो से होती है ना. व्हाट इज अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो का मतलब क्या है. पोर्टफोलियो इज बेसिकली a group of various assets जैसे शेयर्स है डिबेंचर्स है बॉन्ड्स है फिक्स्ड डिपॉजिट्स है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाते हैं ताकि आपका रिस्क भी कम हो जाए. दैट इज कॉल्ड योर पोर्टफोलियो. अब मान लो जैसे स्टॉक मार्केट है. अब स्टॉक्स में भी लोग क्या करते हैं 4-5-10 तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. किसी एक की परफॉर्मेंस खराब हुई नेगेटिव रिटर्न आए तो औरों पे पॉजिटिव होगा तो वो वाला लॉस जो है वो कवर हो जाएगा. क्योंकि आपको तो पहले से नहीं पता ना कि किस में आप लगाएं जिसका में लॉस होगा जिसमें प्रॉफिट होगा. तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट थोड़े थोड़े जगहों पे अलग अलग इन्वेस्ट करें. Now, portfolio management क्या है? It is a process of portfolio construction, revision and continuous evaluation of the portfolio. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जितना हम रिस्क ले रहे हैं या जितना हमें रिस्क ले रहे हैं हम उतना हमें रिटर्न मिले. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टर जितना रिस्क बियर कर सकता है उसकी रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न भी मिले. ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. और इसमें आपके 5 स्टेप्स होते हैं जो कि हैं ये. सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो सिलेक्शन पोर्टफोलियो रिवीजन पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन. ठीक है अब सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है. अगेन एनालाइजिंग द सिक्योरिटीज वेरियस सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन यस्टरडेज क्लास. हमने सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न कैसे निकालते हैं वो हमने और सीवी के अकॉर्डिंग किस सिक्योरिटी को हमें चूज करना चाहिए और किसको नहीं वो हम सब कर चुके हैं. तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस. अब जितनी भी सिक्योरिटीज हम शॉर्टलिस्ट करते हैं उसके बेसिस पे वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो. ठीक है पोर्टफोलियो जो होता है आपका अगेन पोर्टफोलियो को भी कैसे एनालाइज करेंगे. अच्छा जैसे मान लीजिए मैंने 20 सिक्योरिटी शॉर्टलिस्ट करी. 20 सिक्योरिटी में बहुत सारे तरीके के पोर्टफोलियो बना सकते हो. सिक्योरिटी एओपी को ऐड करके एक पोर्टफोलियो बन जाएगा. बीसी से अलग बन जाएगा एबीसी से अलग बन जाएगा एसी से अलग बन जाएगा एंड सो ऑन. तो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है डिफरेंट पोर्टफोलियोज के रिस्क एंड रिटर्न को एनालाइज करना. ठीक है तो इसका मतलब क्या है पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न एनालाइज करेगा ना. पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न इज नॉट सेम एज द सिक्योरिटी रिस्क एंड रिटर्न. व्हाई कि जो आपका पोर्टफोलियो है portfolio analysis it starts with analysis of risk and return. This concept of portfolio risk and return was given by Harry Markowitz. ठीक है तो हैरी मार्कोविट्स की जो थ्योरी है उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस और सिलेक्शन दोनों आता है. अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में हमें रिस्क एंड रिटर्न एनालाइज करना है. ठीक है उसके बाद हम लोग सिलेक्शन वाले पार्ट पे हैं. तो पोर्टफोलियो रिटर्न जो है आपको सिक्योरिटी रिटर्न की तरह नहीं होता. इनफैक्ट जो पोर्टफोलियो में डिफरेंट सिक्योरिटीज होती है उन सिक्योरिटीज के रिटर्न्स का जो वेटेड एवरेज होता है वो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न होता है. अब वेट क्या होता है. वेट का मतलब होता है हमने किस सिक्योरिटी में कितना प्रोपोर्शन फंड इन्वेस्ट किया है वो उसका पर्टिकुलर वेट बन जाता है. ओके नाउ द वेट ऑफ एनी सिक्योरिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन दैट सिक्योरिटी. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मान लो 3 सिक्योरिटीज है तीनों में आप इक्वली इन्वेस्ट कर दिया तो प्रोपोर्शन क्या हो गया वेट क्या हो गया 1/3 1/3 1/3.
लेकिन मान लो दो में 30% किया और एक में 40% कर दिया, तो 0.3, 0.3 और 0.4 ये हमारे वेट्स बन जाएंगे। यानी कि परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, ईआरपी शोज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इट इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n WI into ERI। मतलब वेटेज आई शोज द ith सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी का वेट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ऐसे सभी सिक्योरिटीज को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको टोटल करके दैट विल गिव द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। Now this is the question, you can read this question once. देखिए दो सिक्योरिटीज है एक पोर्टफोलियो में, ए और बी, दोनों पे रिटर्न है 10%, 15%। जो अब सिक्योरिटी ए का जो रिटर्न है, सिक्योरिटी ए में इन्वेस्टमेंट करिए 40% और सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट करिए 60%। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हाँ ये जो पोर्टफोलियो बनाया हमने जिसमें 40% ए है, इसमें 40% ए है और 60% बी है, उस पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। तो रिटर्न क्या होगा, वेटेज वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज की हम कैसे करेंगे, हम ए के वेट को उसके रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी के वेट को बी के रिटर्न के साथ करेंगे, यानी कि 0.4 into 10 plus 0.6 into 15 which will give us 4 plus 9 13%. This is the concept of average return. ना नेक्स्ट हमारा आता है आइडिया की इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिस्क का वेटेड एवरेज नहीं होता। In a portfolio, the risk of any individual security cannot be viewed in isolation of other securities. Okay, so just a second. ओके, अब जो आपका रिस्क होता है, वीवर ऑन पोर्टफोलियो रिस्क, आपका पोर्टफोलियो रिस्क सिंपली सिक्योरिटी रिटर्न, सिक्योरिटी रिस्क का वेटेड एवरेज नहीं होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो रिस्क में क्या होता है आपका, इन अ पोर्टफोलियो रिस्क द रिस्क ऑफ एनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी कैन नॉट विewed इन आइसोलेशन विद ऑफ अदर सिक्योरिटीज। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग हम सिक्योरिटीज के रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं, एक्चुअल में सिक्योरिटीज एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होती है, तो उनके रिस्क जो होते हैं आपस में कोरिलेटेड होते हैं, तो हमें एक सिक्योरिटी का दूसरे सिक्योरिटी के साथ इंटरेक्शन को भी ध्यान में रखना होता है, और ये जो इंटरेक्शन होता है इट इज मेजर्ड बाय कोवेरिएंस। ठीक है, तो यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करते वक्त हमें जो है इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिस्क को भी देखना होता है, साथ के साथ उनके आपस में जो कोवेरिएंसेस होते हैं उनको भी देखना होता है। नाउ सबसे पहले अब देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं, इन केस ऑफ टू सिक्योरिटीज द पोर्टफोलियो रिस्क is given by standard deviation p is equal to under the root, ये पूरा जो ब्रैकेट में ये अंडर रूट के अंदर आएगा, w1 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स w1 w2 कोवेरिएंस 1 2। मतलब
कि आपने W1 क्या हो गया फर्स्ट सिक्योरिटी का वेट, W2 हो गया सेकंड सिक्योरिटी का वेट। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आपका क्या बन गया, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 2। ओके, और कोवेरियंस है उन दोनों, COV 1-2 का मतलब है कोवेरियंस, मतलब उनमें आपस में क्या इंटर रिलेशन है। अब कोवेरियंस को हम कोरिलेशन के तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोवेरियंस का मतलब क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरिलेशन एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। हम जो है कोरिलेशन के साथ अगर हम उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कोवेरियंस आ जाता है। और इसीलिए अगर क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन होगा तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और कोरिलेशन गिवन होगा तो आप COV की जगह ये लिखेंगे। ये जो आपका P जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रो 1-2 इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू सिक्योरिटीज। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इज द रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। यानी कि अब आपका पोर्टफोलियो रिस्क इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन क्या बन जाएगा, इट इज अंडर द रूट W1 स्क्वायर W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 प्लस W1 W2। एक सेकेंड यहाँ पे मिसिंग है। अब ये पूरा का पूरा आपका जो है कोरिलेशन बन जाता है अगर आप इस तरीके से, मतलब कोवेरियंस की जगह पे हम कोरिलेशन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट ना, ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो मॉडल हैरी मार्कोविच ने दिया, इसकी उसकी कुछ लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले तो मेन जो इसकी मेन लिमिटेशन है वो ये है कि ये आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न है, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चाहिए होती है। कैसे रिटर्न, हमें क्या क्या चाहिए, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज चाहिए पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए, रिस्क निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और कोवेरियंस चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ती जाती है डाटा रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है। कैसे, मान लो अगर आपका, हमारे इसका एक फॉर्मूला है, for n securities we need n number of returns, n number of standard deviation and n minus 1 oblique 2 n minus 1 by 2 नंबर ऑफ कोवेरियंस। मान लो अगर मेरे पास 20 सिक्योरिटी है तो 20 रिटर्न और 20 स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझे चाहिए। कोवेरियंसेस कितने हो जाएंगे, 20 इंटू 20 माइनस 1 19 बाय 2, यानी कि 120 कोवेरियंसेस। तो टोटल आई विल नीड 230 आइटम्स। सिर्फ 20 सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए मुझे 230 आइटम्स चाहिए। लेकिन यही अगर मान लो ये सिक्योरिटी का मेरा जो पोर्टफोलियो का है, जो मेरे पास सिक्योरिटीज 50 हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये 530 नहीं बनेगा, ये मल्टीपल टाइम बन जाएगा, थाउजेंड्स में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 सिक्योरिटीज के लिए मुझे 50 रिटर्न और 50 स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। लेकिन कोवेरियंस कितने चाहिए, 50 इंटू 49 बाय 2, तो अप्रोक्सीमेटली 1225, और 100 आइटम ये तो 1325। तो थाउजेंड्स में ये फिगर चला जाता है। जितने ज्यादा ज्यादा हमारे पास ये पढ़ते हैं आपके सिक्योरिटीज का नंबर बढ़ता है, उतना ज्यादा ही हमारे पास इंफॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है। टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटीज के बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव कोवेरियंस, नेगेटिव कोवेरियंस और जीरो कोवेरियंस हो सकता है। पॉजिटिव कोवेरियंस का मतलब अगर दो सिक्योरिटीज के रिटर्न सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक के बढ़ते दूसरे के बढ़ते, एक के घटते दूसरे के घटते, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोवेरियंस। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं उनके एवरेज रिटर्न्स, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कोवेरियंस। और इसी तरीके से अगर आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक के मूवमेंट से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं जीरो कोवेरियंस। नाउ कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो फॉर अ गिवन एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड इतना चाहिए और आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, तो आप कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन पढ़िए।
An investor wishes to have a portfolio. An investor wishes to have a portfolio return of 15% using securities A and B, having expected returns 12% and 20% respectively. देखो एक इन्वेस्टर है, उसको पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए 15%, लेकिन वो जो दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ए और बी, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12% और 20%। तो अब उसे कितना प्रोपोर्शन फंड किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। अब हमें पता है टोटल वेट हमेशा 1 होता है, टोटल शोज द 100%। तो मान लो डब्ल्यू ए जो है फर्स्ट सिक्योरिटी का, ए सिक्योरिटी का वेट शो कर रहा है, डब्ल्यू बी जो है आपका सिक्योरिटी बी का वेट कर शो कर रहा है ना। डब्ल्यू बी को मैं 1 माइनस डब्ल्यू ए लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि टोटल इज डब्ल्यू 1। देयरफॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएगा इन सिक्योरिटीज पे? ए पर है 12%, बी पर है 20%। तो रिटर्न पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। वेट ऑफ ए की जगह मैंने डब्ल्यू ए लिख दिया, वेट ऑफ बी की जगह 1 माइनस डब्ल्यू ए लिख दिया मैंने, और ये रिटर्न की जगह 12 और 20 लिख दिया है, और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज 15। इससे आपकी इक्वेशन बन गई, सॉल्व करेंगे तो आपका डब्ल्यू ए आ रहा है 62.5% एंड डब्ल्यू बी विल बी 37.5%। यानी कि आपको अपने फंड्स का 62.5% इसमें लगाना है और 37.5। यही अगर क्वेश्चन में कहा गया होता दैट इन्वेस्टर हैज रुपीज 1 लाख टू इन्वेस्ट, तो आप इसको इसी तरीके से करते, लेकिन फिर आपका ए का वेटेज क्या होता था? 62.5% ऑफ 1 लाख विच इज 62,500 एंड 37.5% ऑफ 1 लाख दैट इज 37,500। तो कई बार क्वेश्चन आपको अमाउंट के फॉर्म में भी आ सकता है। अब जैसे हमने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है एक गिवन रिटर्न के लिए, इसी तरीके से हम एक गिवन वेरिएंस या रिस्क के लिए भी हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हमें मिनिमम ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रिस्क मिनिमम हो, मतलब आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का रिस्क गिवन है, आपको उनके बीच का कोवेरियंस गिवन है, और आपको बताना है ऐसा सिक्योर, आपको ये बताना है कि आप कितना कितना किस में इन्वेस्ट करें जिससे कि आपका रिटर्न कम हो जाए। मान लो मैंने दो सिक्योरिटी सेलेक्ट करी हुई है, ए और बी, ठीक है। ए है बीपीसीएल की और बी है आपके रिलायंस के, दोनों अच्छे शेयर्स है। अब मेरे पास दोनों का रिस्क और रिटर्न है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे कितना इन्वेस्ट कितने में किस में करूँ ताकि मेरा टोटल रिस्क मिनिमम हो। तो उसके लिए यही फॉर्मूला होता है आपका वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर को हम वेरिएंस कहते हैं। तो वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरिएंस ए बी डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ए बी, और कोवेरिएंस ए बी की जगह हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपका ये रो ए बी स्टैंडर्ड डेविएशन ए बी वाला है ना, कोरिलेशन वाला, हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब हमारे पास मिनिमम वेट आ जाएगा, ए का वेट आ जाएगा, तो बी का हमारा 1 माइनस द वेट ऑफ ए करके हम बी का निकाल सकते हैं। Now this is the question, you can read this question. देखो आपको दो सिक्योरिटीज गिवन है, ए और बी, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न और उनका रिस्क गिवन है। हमें क्या करना है, हमें दे रखा है उनके बीच में कोवेरियंस है 10 -10, देखो माइनस का साइन लगा, -10 है, तो हमें जो है वो शो वो बनाना है अपना कि पोर्टफोलियो किस में कितना वेटेज निकालने की, किस में कितना इन्वेस्ट करे ताकि आपका मिनिमम रिस्क आ सके। अब मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में ए का वेट क्या होगा? WMIN A इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर माइनस कोवेरियंस ए बी बाय दिस। ओके, अब ये सारी फिगर्स मैंने क्वेश्चन में गिवन है, मैंने वहां से लेके पुट करी है। तो मेरा आगे 27% और बी का वेट क्या आ जाएगा? 1 माइनस 27% यानी कि 73%। और अब ये जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका रिस्क कितना है? दिस इज अंडर द रूट डब्ल्यू ए स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कोवेरियंस ए बी। अब इसमें जो वेट हमने निकाले हैं 0.27 और 0.73 वो हमने यूज किए हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, कोवेरियंस जो क्वेश्चन में गिवन थे वो यूज किए हैं। इसके बेसिस पे आपका जो रिस्क आ रहा है वो 0.5 यानी कि 50% आ रहा है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल सिक्योरिटी का एक मिनट,
I hope you have read this question. Now next is the concept of coefficient of correlation. अभी मैंने आपको जो कोवेरियंस कराया उसमें हमने ये भी किया था कि कोवेरियंस जो होता है कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है प्रोडक्ट होता है ना। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेसिकली कोवेरियंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों ही जो है आपका डिग्री मतलब मूवमेंट को चेक कर रहा है, आपकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर कर रहे हैं, लेकिन कोवेरियंस एक एब्सोल्यूट टर्म है। जितना ज्यादा अगर आपके सिक्योरिटीज का रिटर्न या रिस्क बड़ा आएगा, मान लो सब रिटर्न सारे 2 डिजिट में है तो कोवेरियंस भी आपका बड़ा आएगा। वही रिटर्न आपका अगर सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो कोवेरियंस छोटा आ जाएगा। तो इट इज अफेक्टेड बाय द यूनिट ऑफ मेजर। उसी के लिए ऑल्टरनेट आपका जो तरीका है वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है यूनिट ऑफ मेजर से इंडिपेंडेंट होता है। ये एक रिलेटिव मेजर और इसलिए इसकी जो रेंज है, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी। कोवेरियंस की कोई रेंज नहीं, हम कहीं से कहीं तक भी जा सकता है। अब हमारे जो अगर हम इसको स्केल पे देखते हैं तो -1 का मतलब होता है परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, मतलब दोनों हमेशा अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। 0 का मतलब होता है नो रिलेशन एंड +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, -1 से 0 के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन, 0 से +1 के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये हुआ हमारे कोरिलेशन। कोरिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? कोवेरियंस को डिवाइड करके बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बी। ठीक है, तो आप बात करो। Okay, so this is the formula for coefficient of correlation. ना मान लो आपके अब इसी के लिए एक एग्जांपल है कि एक इन्वेस्टर है जो 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, 12%, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5%, 2%। हमें पोर्टफोलियो रिस्क बताना है अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये है -1, -0.50, 0.51। अब आप जो इसकी हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मूव करने से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोर्टफोलियो के रिटर्न की। पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है? इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल रिटर्न। अब यहाँ पे वेट क्या है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो वेट इज 0.5, 0.5। ओके, नाउ वेटेड एवरेज रिटर्न क्या हो जाएगा? 20 इंटू 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5। हमने एक ही रिटर्न को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 12 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 10 + 6, 16%। अब इनके स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। देखो, कोरिलेशन का कोई भी असर एक्सपेक्टेड रिटर्न पे नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेड रिटर्न सिर्फ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज और वेट्स के अकॉर्डिंग आता है। ओके, तो वो तो वही रहेगा चाहे कोरिलेशन कुछ भी, लेकिन कोरिलेशन चेंज होने से पोर्टफोलियो का रिस्क चेंज होता है। वो कैसे होता है वो दिखाती हूँ। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न and the return will remain same in all the 5 cases. ओके, दिस इज पोर्टफोलियो रिस्क। अब पोर्टफोलियो रिस्क के लिए देखिए मैंने जो फॉर्मूला यूज किया आपकी बार कोरिलेशन वाला किया है। WA² स्टैंडर्ड डेविएशन A² प्लस WB² स्टैंडर्ड डेविएशन B² प्लस 2WA WB रो AB स्टैंडर्ड डेविएशन A एंड स्टैंडर्ड डेविएशन B। ठीक है, नाउ WA कितना है आपका? अच्छा सॉरी, ये जब मैंने पेस्टिंग करी है तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन पेस्टिंग। आपका जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर नीचे आके 2 हो गया। आई एम सीइंग ये 52 कैसे हो गया? एक्चुअली 0.5 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था। वो कॉपी पेस्ट करने में जो है ना यहाँ पे फॉर्मूले में ये गलती हो गई। जस्ट आई विल शो यू इन द अनदर डॉक्यूमेंट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, यू कैन सी हियर, मैंने न्यू डॉक्यूमेंट आपको शो किया है, जहां से कॉपी करते हो तुम में से गलती हुई है। देखिए, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है 20%, 12%, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5%, 2%, वेट है आपके 0.5, ओके। तो जब ये क्वेश्चन करेंगे हम, पोर्टफोलियो रिस्क अब हमारा क्या होता है, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो विच इज रूट WA square standard deviation A square plus WB square standard deviation B square plus 2 times WA WB standard deviation AB standard deviation A into standard deviation B. ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, WA की जगह 0.5 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन A इज अगेन 5, WB 0.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन B हमारा 2 है, और 2 टाइम्स WA WB, अगेन यही सारी वैल्यू पुट हो जाएगी पहले, लेकिन हम कोरिलेशन को अभी पुट नहीं करेंगे, ये जो है ना रो ए बी, इसको भी छोड़ देंगे कोरिलेशन वाली वैल्यू को, ताकि हमारी जनरल टर्म बन जाए। इसके बेसिस पे मेरी जनरल टर्म बन गई अंडर द रूट 7.25 प्लस 5 टाइम्स कोरिलेशन। अब मेरा कोरिलेशन जब -1 हो जाएगा, तो मैं इसमें कोरिलेशन की जगह -1 पुट कर दूंगी, इट विल गिव मी रूट 2.25 विच इज 1.5%। जब ये कोरिलेशन -0.5 है, तो ये बन गया मेरा 4.75 which is 2.18%, जीरो होने पे ये बन गया 2.69%, 0.5 है तो मेरा पोर्टफोलियो रिस्क आ गया 3.12%, और जब कोरिलेशन 1 है तो इट इज 3.5%। तो अगर आप देखेंगे जैसे जैसे कोरिलेशन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, कोरिलेशन की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका रिस्क भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पोर्टफोलियो हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट, अगर हमें अपना रिस्क मिनिमाइज करना है, तो हमें वो सिक्योरिटीज चूज करनी चाहिए जिनका जो आपस में कोरिलेशन है वो बहुत कम हो, नेगेटिव हो, परफेक्ट नेगेटिव हो। ओके, जितना कम कोरिलेशन होगा, जितना नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे, उतना ही जो है वो बेटर हो जाता है। सो दिस इज ओके, दिस इज अबाउट द पोर्टफोलियो रिस्क। यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क हमारा सबसे मिनिमम कब हुआ, पोर्टफोलियो रिस्क हमारा मिनिमम जब है जब हमने सिक्योरिटीज जो कि परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है, उनको अगर आपस में ज्वाइन किया, तो हमारा जो है रिस्क मिनिमम हो जाएगा। और यही हमारा आइडिया बिहाइंड द डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हमारा रिस्क कम कैसे होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड या नेगेटिव कोरिलेटेड सिक्योरिटीज को आपस में जब जोड़ते हैं, तब हमारा जो है डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क बाय एलोकेटिंग द टोटल फंड्स अवेलेबल टू डिफरेंट investment options. Diversification is possible only when the coefficient of correlation between the returns of the securities is less than 1. By diversification, the diversifiable risk or unsystematic risk can be eliminated. The risk is further reduced if the correlation coefficient is negative. अगर आपको correlation coefficient negative होता है, तो ये risk आपको और भी ज्यादा कम हो जाता है। Now, combining the securities having negative correlation is called hedging. अगर हमारे नेगेटिव कोरिलेशन वाले सिक्योरिटीज को हम जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं hedging। और hedging का मतलब क्या है, बेसिकली उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जिनका कोरिलेशन जो है नेगेटिव है, जिससे कि हमारा रिस्क जो है काफी कम हो जाता है। और अगर हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक परफेक्ट हेज एसेट को बना सकते हैं, और ऐसे एसेट को इंक्लूड करके हम अपने रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं ना। जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, क्या कोई जीरो रिस्क पोर्टफोलियो हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो -1 होना चाहिए। अब आप कहेंगे पिछले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 था, लेकिन जीरो नहीं था उस टाइम पे, उस टाइम पे भी रिस्क 1.5% था। क्यों? क्योंकि जीरो रिस्क पोर्टफोलियो के लिए हमें वेट के ऊपर भी ध्यान देना होता है। यानी कि WA is the weight of A, weightage of A should be equal to standard deviation B divided by standard deviation A plus standard deviation B. Now आप इसको इस एग्जांपल के साथ देख सकते हैं।
You can read the example. Let's take an example of two securities A and B having expected returns of 15% and 20%. Standard deviation है returns का 20%, 10%, 15%. Coefficient of correlation है -1. अब जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेटेज निकालनी पड़ेगी ए और बी की। कोरिलेशन तो -1 है। नाउ अब हमारा जीरो रिस्क पोर्टफोलियो कब कंस्ट्रक्ट हो सकता है, जब ए का वेट स्टैंडर्ड डेविएशन बी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी हो, यानी कि 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15 व्हिच विल गिव यू 0.6 और डब्ल्यू बी आपका 0.4 होना चाहिए। तब ये जो है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। Now this table gives you the relationship between coefficient of correlation, diversification and portfolio risk. अगर आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है तो डाइवर्सिफिकेशन हो ही नहीं सकता और पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस नहीं होता, पोर्टफोलियो रिस्क जो कि सिर्फ एवरेज हो जाती है। देन 0 से लेके 1 के बीच में तो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है और पोर्टफोलियो रिस्क हम कम कर सकते हैं। 0 होने पे डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है, और पिछले केस से बेटर हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कोरिलेशन कम होता जा रहा है वो बेटर होता जाएगा और पोर्टफोलियो रिस्क जो है उसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। नॉट ओनली डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग। अब अगर -1 नेगेटिव कोरिलेटेड है, -1 से 0 के बीच में, तो खाली डाइवर्सिफिकेशन की हेजिंग भी पॉसिबल होती है और रिस्क जो और भी ज्यादा कम हो जाता है। और अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो सिक्योरिटीज में -1 है तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट हेजिंग, और वहां पर आपका जो पोर्टफोलियो रिस्क होता है वो लीस्ट हो जाता है, सबसे कम होता है। Okay, so this is all about the security analysis and portfolio analysis. Now the next topic is portfolio selection. अब पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए हैरी मार्कोविट्ज ने अगेन मॉडल दिया है। मैंने आपको बताया था हैरी मार्कोविट्ज ने पोर्टफोलियो एनालिसिस और सिलेक्शन दोनों के लिए मॉडल दिया है, ठीक है। तो हम हैरी मार्कोविट्ज का मॉडल पढ़ेंगे, उसमें भी अगेन आपके डिफरेंट स्टेप्स है कि पोर्टफोलियो को सेलेक्ट कैसे करना। आपने एनालाइज कर लिया पोर्टफोलियो को, अब उसमें से बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे सेलेक्ट करोगे, दिस इज गिवन बाय दी हैरी मार्कोविट्ज। जस्ट अ मिनट। A break of just 2 minutes, 2 to 3 minutes, या 5 minutes break लेते हैं, then I'll continue in 5 minutes. I'll continue in 2 minutes, just a break of 2 minutes.
Hello, am I audible now? There was some internet issue. Okay, so let's back to the portfolio selection again. So we have to do the portfolio selection now. Portfolio selection में Harry Markowitz का एक proper model है that I am showing you how it works. Is visible? देखिए जो आपका हैरी मार्कोविट्ज मॉडल है इट इज अगेन अ 4 स्टेप प्रोसेस. इसमें आपके 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज हाँ पहली बात तो आपके जो ये हैरी मार्कोविट्ज की थ्योरी है इसका मॉडल है. इसकी कुछ assumptions है. assumptions क्या है? सबसे पहले markets are efficient and investors have access to all the available information regarding the expected return, standard deviation and covariances of securities or assets. मतलब मार्केट एफिशिएंट है. इन्वेस्टर्स जो है वो सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं रिगार्डिंग द रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरिएंसेस. इन्वेस्टर्स जो है वो रिस्क एवर्स है, वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते. इन्वेस्टर्स रैशनल है. रैशनल का मतलब क्या होता है? वो रिस्क एंड रिटर्न को ध्यान में रखकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और उनका एक सिंगल टाइम हॉरिजन है. नो टैक्सेस एंड नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट. There is a risk-free rate of interest in the market and any amount of capital can be borrowed or invested at that particular rate of risk. The risk-free rate. Investors make their decisions solely on the basis of expected returns and variance. वो अपने decision इनके ऊपर लेते हैं. So these are the few assumptions of your Harry Markowitz model. अब Harry Markowitz model के आपके steps क्या हैं? सबसे पहले setting the portfolio opportunity set or investment opportunity set. Then determining the efficient set of portfolios जिसको हम efficient frontier कहते हैं. ये आप एक ही डायग्राम में ये दोनों चीजें आ जाती है. थर्ड है आपका constructing reference curves for selecting the optimal portfolio. Setting the portfolio opportunity set or investment opportunity set. सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो आपका जो ये बेसिकली क्या होता है? This model starts with the preparation of portfolio opportunity set. मतलब हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे पोर्टफोलियोज बन सकते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज को लेकर हम वो सारे पोर्टफोलियोज कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं. इस तरीके से एक डायग्राम पे प्लॉट कर देते हैं. लाइक ए बी सी डी ये सब आपके पोर्टफोलियोज बन गए हैं. ओके यहाँ पे क्यू आपका एक पोर्टफोलियो. इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे पोर्टफोलियोज और भी हो सकते हैं. दीज आर जस्ट 5. ओके फिर हम बनाते हैं एक एफिशिएंट फ्रंटियर. एफिशिएंट फ्रंटियर का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं हम उनको एक लाइन पे आ जाते हैं. वो कैसे होते हैं? मान लो आपका क्यू और पी दो ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जिनका लेवल ऑफ रिस्क सेम है. देखो सेम रिस्क पर है लेकिन रिटर्न किसका ज्यादा है? पी का, क्योंकि पी हायर पॉइंट पे है. तो इन्वेस्टर कौन सा चूज करेगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टर विल चूज द पी. इसी तरीके से मान लो आपका एक ऐसा कोई भी और ऐसा पोर्टफोलियो होता जो बी से नीचे लाई कर रहा होता तो ऑब्वियसली आप ऊपर चले जाते भाई. क्यों? क्योंकि रिस्क सेम होता लेकिन रिटर्न बी का ज्यादा है. तो ऐसे करते करते आप ये एसी कर्व पर आ जाते हैं. दिस एसी कर्व इज नोन एज द एफिशिएंट फ्रंटियर, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है टू डिटरमाइन द एफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो और वी कॉल इट एफिशिएंट. उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं इन्वेस्टर के, मतलब अपनी यूटिलिटी प्रेफरेंसेस का इन्वेस्टर्स का एक कर्व होता है. दीज आर द इन्वेस्टर्स यूटिलिटी कर्व. अब हर एक पर्टिकुलर कर्व पे इन्वेस्टर की यूटिलिटी सेम है. ठीक है देखो जैसे C1 आपका जो कर्व है उस पर S1 और S2 दो पॉइंट है विद डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न. दे आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द इन्वेस्टर्स. सिमिलरली हायर द लेकिन आपका जो C2 है C2 पर S3 S4 सेम यूटिलिटी दे रहे हैं लेकिन इनकी यूटिलिटी S1 S2 से ज्यादा है. हायर द डिफरेंस कर्व हायर इज द सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी टू द इन्वेस्टर्स. तो हर इन्वेस्टर क्या चाहता है? क्या चाहता है? हर इन्वेस्टर चाहता है हायर इंडिफरेंस कर्व को अचीव करना बट ही हैज द बजट कंस्ट्रेंट. ठीक है सारे इंडिफरेंस कर्व उसकी पहुंच में नहीं होते हैं. अब हम देखते हैं हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियो, हमारा जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है कैसे निकालते हैं. ये जो इंडिफरेंस कर्व्स है और ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर हमने बनाया था हम उसको एक ही मैप पे ड्रॉ कर देते हैं. जो अब हमें पोर्टफोलियो को तो सिलेक्ट करना है जो हमारे एफिशिएंट फ्रंटियर पे है. ठीक है
अब इस एफिशिएंट फ्रंटियर में भी हम ये देखते हैं, मान लो एफिशिएंट फ्रंटियर तो C2 और C3 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, C1 पे जाए, सॉरी C1 और C2 को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मूव टुवर्ड्स द हायर इंडिफरेंस कर्व, देयरफॉर वी विल मूव टुवर्ड्स C3, और C3 पर आपको अगेन अब R और X दो पॉइंट है दैट कैन बी देयर, लेकिन X आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो फ्रंटियर का सेट नहीं है, एफिशिएंट फ्रंटियर का पोर्टफोलियो नहीं है, तो R is the point that is giving you the highest possible level of utility. Also, it lies on the efficient frontier. Therefore, R is your optimal portfolio. Basically, optimal portfolio आपके utility curve और efficient frontier के tangency point से आता है. So this is about the portfolio selection model given by the Harry Markowitz. Now, अब इसकी limitations क्या है? Again, इसमें आपको बहुत सारे टाइप का डाटा रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि हमने पहले भी किया था. हैरी मार्कोविट्ज मॉडल की लिमिटेशन क्या है? हैरी मार्कोविट्ज मॉडल की लिमिटेशन यही है कि आपको जो डाटा रिक्वायरमेंट होता है, डाटा रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है. कैसे ज्यादा हो जाता है? सॉरी, जितनी सिक्योरिटीज है आपके पास, हर सिक्योरिटी की आपको रिटर्न चाहिए, हर सिक्योरिटी का रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, प्लस उनके कोवेरिएंसेस चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन बिकम्स मेनी फोल्ड्स. We have covered Harry Markowitz model of portfolio selection. ये सारे स्टेप्स मैंने आपको करा दिए हैं अभी. लिमिटेशन, अगेन बहुत सारी डाटा की रिक्वायरमेंट होती है. अच्छा, अब यहाँ पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर होते हैं, हर इन्वेस्टर का ऑप्टिमल पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है, लेकिन इस लिमिटेशन को रिमूव किया गया रिस्क फ्री एसेट को कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस करके. नाउ नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन. कैपिटल मार्केट लाइन बेसिकली आपकी हैरी मार्कोविट्ज थ्योरी का ही, पोर्टफोलियो थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है, जहां पर हम रिस्क फ्री लैंडिंग और बोरिंग को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. जब आपका रिस्क फ्री लैंडिंग और बोरिंग अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है कैपिटल मार्केट में, तो तो आपका जो है कि आपके पास एक लाइन आ जाती है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट लाइन. अब इस थ्योरी की आपकी मेन असम्पशंस क्या है? फर्स्ट, इन्वेस्टर्स आर रैशनल as they make their decision primarily on the basis of assessment of risk and return. ये आपके जो इन्वेस्टर्स है वो रैशनल है. देन सिक्योरिटीज आपकी इनफाइनाइटली डिविजिबल है, आप जितनी मर्जी बार सिक्योरिटीज को डिवाइड कर सकते हो, आप फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन में भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो. शॉर्ट सेलिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. शॉर्ट सेलिंग मतलब आज खरीदा कल बेच दे, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. There are large number of investors and the buying or selling action of any investor will not affect the price of the securities. सिक्योरिटी मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और किसी एक के बाइंग और सेलिंग से सिक्योरिटी मार्केट में प्राइसेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता. नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेस, बिसाइड रिस्की एसेट्स, आपके रिस्क फ्री एसेट भी मार्केट में होंगे, और इन्वेस्टर्स जो है वो होमोजीनियस है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आइडेंटिकल है अबाउट द रिटर्न्स एंड द कोवेरिएंस. ठीक है, हमने आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशन क्यों लिया? आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशन इसलिए लिया तभी हमारे जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है सबका सिमिलर बनेगा. अगर उनके एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होगी तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो सिमिलर नहीं बन सकता. दिस इज द एफिशिएंट पोर्टफोलियो. हमने एक रिस्क फ्री एसेट इंट्रोड्यूस किया जो आपको रिस्क फ्री रेट, बेसिकली आपका आरएफ जो है रिस्क फ्री रेट है, एक आपका एम जो है मार्केट पोर्टफोलियो है. आप आरएफ को एम से ज्वाइन कर देते हैं और ये आपकी आ जाती है कैपिटल मार्केट लाइन. आप इसके बीच में कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं. दिस इज योर कैपिटल मार्केट लाइन. अब इसकी इक्वेशन क्या है दैट विल शो इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. जस्ट अ मिनट, क्योंकि वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रही थी इक्वेशन. ओके, देखिए कैपिटल मार्केट लाइन क्या कहता है. कैपिटल मार्केट लाइन shows
that the return from a portfolio depends upon the risk-free rate, reward per unit of market risk, and the total risk of the portfolio. Higher the risk, higher will be the expected return. CML जो है हमारा पॉजिटिव और लीनियर रिलेशनशिप शो करता है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो में और इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न में. देखिए CML की आपकी इक्वेशन क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ CML where expected return ERP shows the expected return of portfolio. Expected return of the portfolio is equal to RF risk free return plus ERM expected return on the market portfolio minus the risk free return. ये हमारा रिस्क प्रीमियम शो करता है. ERM minus RF shows the risk premium. कई बार क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम गिवन होता है तो मतलब वो ऑलरेडी आपको ERM minus RF दिखा रहा है. Into standard deviation of the portfolio divided by standard deviation of the market. ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं पोर्टफोलियो का. क्वेश्चन, let me switch the screen again. Okay. Example of CML capital market line का एक example है. The details of 3 portfolios are provided to an investor. It is further given that the risk-free rate of return is 4% and expected market return is 12%. देखो रिस्क फ्री रिटर्न आपका RF है ये 4%, यानी कि 0.04 आपका जो है RF हो गया. एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है 12%, ये RM है आपका. मार्केट पोर्टफोलियो का रिस्क है 5%. अब हमारे पास 3 पोर्टफोलियोज है, हमें बताना है क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है. तो हम क्या करते हैं, मार्केट पोर्टफोलियो जो हमारे पोर्टफोलियोज का एक्सपेक्टेड रिटर्न है और जो उनका रिटर्न होना चाहिए एज पर द CML, उन दोनों को चेक करते हैं. एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो होता है वो आपको कैपिटल मार्केट लाइन पे लाई करना चाहिए. कैपिटल मार्केट लाइन पर लाई करने का मतलब क्या होता है कि उसका आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न CML के रिटर्न के इक्वल आना चाहिए, तभी वो जो है एफिशिएंट माना जाता है ना. ये आपके रिटर्न और रिस्क दे रखे तीनों पोर्टफोलियोज के. अब देखो हमें गिवन एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है क्वेश्चन में. देखो 8%, 18%, 20%, फर्स्ट कॉलम वहीं से आया है. ये ABC 3 पोर्टफोलियोज है, इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8%, 18% और 20%. नाउ रिटर्न हमारा एज पर द CML कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या था, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट. अब मेरा रिस्क फ्री रिटर्न है 4, तो मैंने 4 लिखा, प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो है 12, उसमें से माइनस कर दिया रिस्क फ्री रिटर्न 4. 12 माइनस 4 हो गया इनटू 3 वाज माय, देखो 3 यहाँ पे आपको दे रखा है, इट इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, और 5 जो है मार्केट रिस्क है, उससे हमें डिवाइड करना है, तो मेरा आ गया 8.8%. नाउ हमारे एज पर द CML इसका रिटर्न होना चाहिए 8.8%, लेकिन मुझे मिल रहा है सिर्फ 8%, तो ये नॉट एफिशिएंट है. सिमिलरली सेकंड देखिए, 18% इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, लेकिन CML के अकॉर्डिंग इसका रिटर्न कितना है, अगेन रिस्क फ्री रिटर्न प्लस risk market return minus risk free return into the standard deviation of market divided, sorry, standard deviation of the portfolio divided by standard deviation of market. हमने इस बेसिस पे निकाला 13.6% आया. रिटर्न हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न. देखो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है, लेकिन हमें CML का दे रहा है 13.6%, तो एक्चुअल में इसको मोर देन एफिशिएंट कहते हैं, लेकिन बोलते हैं नॉट एफिशिएंट. हम एफिशिएंट वो मानते हैं जो हमारे CML पे लाई करेंगे. तो अगर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न CML से ज्यादा हो तब भी वो आपका जो है इनएफिशिएंट हो जाता है, और अगर आपका CML से कम है तब भी वो इनएफिशिएंट है. थर्ड केस में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, लेकिन जो आपको CML से एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है वो भी आपका 20% मिल रहा है. तो अब ये आपका क्या है, ये एफिशिएंट है क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, ये आपका कैपिटल मार्केट लाइन पर लाई कर रहा है. दिस इज अबाउट द हायरी मार्कोवर्स मॉडल एंड CML.
दो मॉडल्स और है, एक मॉडल है आपका कैपम का। कैपम मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शार्पेस। ये जो है बेसिकली एक लीनियर रिलेशन शो करता है रिटर्न। अब देखो जो सीएमएल था वो पोर्टफोलियो का था, वहां पर हम लोग पोर्टफोलियो रिस्क लेते हैं, ठीक है, और पोर्टफोलियो के रिटर्न के साथ उसका रिलेशनशिप देखते हैं। लेकिन कैपम मॉडल किसका रिलेशनशिप बता रहा है, एक सिक्योरिटी और उसके सिस्टमैटिक रिस्क का। ये सिस्टमैटिक रिस्क ही क्यों लिया, पूरा रिस्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यानी कि जो रिस्क हमारा एक्चुअली अफेक्ट कर रहा है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क, और इसीलिए उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कैपम में। तो एक और डिफरेंस क्या हुआ सीएमएल और कैपम में, या हैरी मार्कोविट्ज मॉडल और कैपम मॉडल में? एक डिफरेंस तो ये हो गया आपका, हैरी मार्कोविट्ज मॉडल दैट गिव यू सीएमएल, वो आपका पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशन बता रहा है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटी रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप है। प्लस वहां पर आपका टोटल रिस्क लिया जाता है, यहाँ पर आपको सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क दैट इज मेजर्ड बाय बीटा वो लिया जाता है। अब आपकी कैपा मॉडल के असम्पशंस क्या है? Now the assumptions of Kaplan model are as follows. First, all the investors aim to maximize economic utilities. The investors are rational and risk averse. The investors invest in broadly diversified आपके जो investors है हर कोई चाहता है अपनी utility को maximize करना, वो rational है और risk averse है. Investors invest in broadly diversified portfolios across a range of investment. The investors are price takers. That is, they cannot influence the price in their individual capacity. वो price को influence नहीं करते, जो market का price है वो उसी price पर trading करते हैं. Unlimited lending and borrowing can be done at the risk-free rate of return. Then there are no taxes, no transaction costs. Securities are perfectly divisible. Investors have homogeneous expectation about the price movements. Free flow of information, that is all the information is available simultaneously to all the investors. So these are the assumptions of Kappa model. Now this is the CAPM equation. अभी हमने CML की equation कर दी, ऐसे ही CAPM की equation where expected return on a security ARI shows the return on a security is the risk-free return RF plus expected return of market minus the risk-free return. देखो ये RF plus ERM minus RF same है, बस वहां पर बीटा की जगह क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन M, यहाँ पे हो जाता है आपका बीटा. तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सिमिलर है. अब देखिए मान लो आपका सिक्योरिटी X है जिसका रिस्क फ्री रेट है 4%, मार्केट रिटर्न है आपका 10% और बीटा है आपका 0.75. तो अगर हम कैपम को लेते हैं, कैपम मॉडल के अकॉर्डिंग इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आना चाहिए, इट शुड बी 4% यानी कि 0.04 प्लस 0.75 ये बीटा है इनटू 0.10 माइनस 0.03. देखो मैंने बीटा यहाँ पहले लिख दिया और कोई चेंज नहीं है. मेरा 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न है और 3% मेरा रिस्क फ्री रिटर्न है, उसको माइनस करा, 7% को मैंने 0.75 से मल्टीप्लाई किया, आपका ये आ गया 0.0925 यानी कि 9.25%. अब डिसीजन कैसे लेते हैं हम? अगर आपका एक्चुअल रिटर्न सिक्योरिटी से इट इज लेस देन द रिटर्न कैलकुलेटेड एज पर कैपम, दिस सिक्योरिटी इज ओवरप्राइस्ड, ठीक है, और हमें उसको मतलब जैसे कि आपका जो रिटर्न है वो कैपम रिटर्न से कम है, कैपम का रिटर्न जैसे हमने क्वेश्चन में देखा 9.25% था, बट एक्चुअल रिटर्न 8% है. तो यानी कि रिटर्न वो कम दे रहे, रिटर्न कम देने का मतलब क्या, सिक्योरिटी ओवरप्राइस्ड है. ओवरप्राइस सिक्योरिटी को हमें रखना नहीं चाहिए, हमें उसे सेल कर देना चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर एक्चुअल रिटर्न सिक्योरिटी से ज्यादा है, सिक्योरिटी मतलब कैपम मॉडल से ज्यादा आ रहा है एक्चुअल रिटर्न, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें वो अंडर प्राइस्ड है और हमें उस सिक्योरिटी को खरीदना चाहिए. और अगर आपका इक्वल है एक्चुअल रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका कैपा मॉडल के रिटर्न की इक्वल है, तो हम कहते हैं देयर इज द इन्वेस्टर इज इनडिफरेंट, ही कैन होल्ड द एसेट.
तो दिस इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन। आपके हैरी मार्कोविट्ज मॉडल के बेसिस पे हमने कैपिटल मार्केट लाइन बनाई थी, उसी तरीके से कैपो मॉडल के बेसिस पे आपके सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनते हैं। सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जहां पर हम सिस्टमैटिक रिस्क को नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले रहे हैं, रिटर्न को जो है, जो आपका रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज को हम वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी जो है एक स्टार्टिंग फ्रॉम द रिस्क रिटर्न, ये हमारी एक लाइन बन गई है, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इससे ऊपर जो आ रहे हैं हमारे जितने भी इससे ऊपर स्टॉक्स है, वो हमारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, मतलब उनका रिटर्न, एक्चुअल जो रिटर्न आना चाहिए उससे ज्यादा, तो उनको अंडर वैल्यूड कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे है वो हमारे ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उनका रिटर्न कम है एज कम्पेयर टू द सीएमएल, तो उनको ओवर वैल्यूड रिटर्न्स कहते हैं। और जो रिटर्न एक्चुअली एसएमएल पे होते हैं वो प्रॉपर्ली एफिशिएंट रिटर्न, एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एफिशिएंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब हमारा एसएमएल का एक एग्जांपल है कि ये जज करना है हमें कि कौन सी सिक्योरिटी हमारी एफिशिएंट है या नहीं है। सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर आपको 5 डिफरेंट सिक्योरिटीज गिवन है, सबका बीटा यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क गिवन है, और इनका एक्चुअल रिटर्न गिवन है इन परसेंटेज टर्म्स। मार्केट इंडेक्स का रिटर्न है हमारा 15% और सिस्टम रिस्क फ्री रिटर्न है 6%। दिस क्वेश्चन appeared in बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी 2017 पेपर। I have taken this from that question paper. अब आपको बीटा गिवन है, रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न गिवन है। एक्चुअल रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन था, बीटा भी क्वेश्चन में गिवन था। मैंने रिटर्न एज पर एसएमएल निकाला, फॉर्मूला क्या किया, रिस्क फ्री रिटर्न व्हिच वाज 6% प्लस जो आपका जस्ट अ मिनट, मैंने इधर एक शॉर्टकट लगा हुआ है, आई विल शो यू। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, ERF माइनस RF। अब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट का है 15% और रिस्क फ्री है 6%, तो जो रिस्क प्रीमियम है इन दोनों का डिफरेंस है वो 9% है, तो मैंने हर जगह 15 माइनस 6 लिखने की जगह डायरेक्टली 9 लिखा हुआ है। तो इट इज 6% which is risk free rate plus 9%, 9% आया मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पे से मैंने रिस्क फ्री रिटर्न माइनस किया हुआ है into the beta which is 1.2, it is giving me 16.8। मतलब आपका एक्चुअल रिटर्न 20% आ रहा है और एसएमएल के अकॉर्डिंग रिटर्न आना चाहिए 16.8, यानी आपका रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, इट इज अंडर वैल्यूड, अंडर प्राइस्ड। फिर आता है आपका नेक्स्ट सिक्योरिटी बी। अगर इसका हम रिटर्न देखें एज पर एसएमएल और आपका एज पर दी इसका जो एक्चुअल रिटर्न है वो बराबर है, तो ये ना ओवर प्राइस है ना अंडर प्राइस्ड है। देन सॉरी, ओके ना, सिक्योरिटी नंबर सी को देखिए, यहाँ पर आपका रिस्क फ्री रिटर्न है 6%, मार्केट प्रीमियम मतलब रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न है 15% और उसमें से हमने रिस्क फ्री माइनस किया 6%, तो 9% आ गया इनटू बीटा 1.6%। नाउ एक्चुअल रिटर्न इज 22% बट इट इज गिविंग मी एज पर द एसएमएल इट शुड बी 20.4, तो ये अगेन ज्यादा रिटर्न दे रहा था, इट इज अंडर प्राइस्ड। नेक्स्ट केस में दोनों बराबर है 24 तो करेक्टली प्राइस्ड है, और लास्ट केस में एक्चुअल रिटर्न 8% है लेकिन एज पर एसएमएल ज्यादा होना चाहिए, तो इट इज ओवर प्राइस क्योंकि ये मुझे कम रिटर्न दे रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसएमएल एंड सीएमएल। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपका सीएमएल जो है हैरी मार्कोविच मॉडल के बेस पे बना है और एसएमएल जो है आपका कैपो मॉडल के ऊपर बेस्ड है। सीएमएल जो है वो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न शो करता है, लेकिन एसएमएल जो है वो आपका किसका रिस्क रिटर्न शो कर रहा है, सिक्योरिटी का। सीएमएल में पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि टोटल रिस्क लिया जाता है और एसएमएल में जो है सिर्फ बीटा यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क लिया जाता है। ओके, सीएमएल जो है वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो को डिफाइन करता है, लेकिन एसएमएल जो है ये एफिशिएंट एज वेल एज नॉन एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को भी डिफाइन करता है। पोर्टफोलियो जो आपका स्लोप है एसएमएल का, इट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम, वेयर इज द स्लोप ऑफ सीएमएल इज द रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी।
मतलब यहाँ पर स्लोप क्या होता है एसएमएल में, इट इज ई आर एम माइनस, यू कैन राइट ई आर एम माइनस आर एफ, इट इज द स्लोप। बट यहाँ पर स्लोप क्या है, रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी, ई आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, ये यहाँ पे स्लोप बन जाता है। नाउ एसएमएल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, ये पोर्टफोलियो क्या होता है ये मैं करवा चुकी हूँ। So this is all about this chapter. You can ask the questions wherever you have any doubt, you can ask. कल हम करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, waiting for your response, else I can show you few more questions of this chapter, how you can do. Let us do some more question, मैं आपको इसके दो क्वेश्चन और दिखाती हूँ। Okay, an investor is investing in considering investment in security X and Y whose details are these. X जो है आपका 13% रिटर्न दे रहा है और Y 16% रिटर्न दे रखा है, और जो इनका रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो है 4% और 7%। अब हमें पोर्टफोलियो बनाना है 30% एक्स का और 70% वाई का, फिर उस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और रिस्क निकालना है अगर कोरिलेशन -1 हो। ओके, सो कम टू द सॉल्यूशन। ना एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ एक्स इंटू द रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेटेज ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई, यानी कि 0.3 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 0.7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव मी 15.1% रिटर्न। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन कोरिलेशन इज -1। अब रिस्क कैसा होता है, रिस्क का ये फॉर्मूला है वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर प्लस वेटेज ऑफ वाई स्क्वायर प्लस इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी और आपका जो रिस्क आ रहा है वो आ रहा है 3.7%। साथ में इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि हमें रिस्क निकालना है जब कोरिलेशन +1 है। कोरिलेशन +1 है तो अगेन मैंने निकाला और ये आ रहा है 6.1%, यानी कि जब मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बढ़ता है तो मेरा रिस्क भी बढ़ जाता है। Now there is another question. Has 1 lakh to invest, on which he wants to earn return of 16%. He has two sources available for investment. Debentures offering return of 15%, equity shares offering return of 20%. Find the amount invested in each security to achieve the target rate of return. Target rate of return क्या है 16%। अब वही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। मान लो मेरा जो डिबेंचर्स है उसके लिए मेरा जो वेटेज है वो W है, तो इक्विटी शेयर के लिए क्या हो जाएगा 1 - W। नाउ W इंटू 15, 15 क्या है रिटर्न है आपका डिबेंचर्स पे और 20 रिटर्न है आपका इक्विटी शेयर्स पे, तो W इंटू 15 प्लस 1 - W इंटू 20। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 16 जो है एक्चुअली W इंटू 15 प्लस 1 - W इंटू 20, ये आपका बन गया है पोर्टफोलियो रिटर्न। दिस पोर्टफोलियो रिटर्न मस्ट बी इक्वल टू 16। इसके बेसिस पे 16 इज इक्वल टू 20 - 5W, और आप अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5W विल बी 4 और W विल बी 4/5, यानी कि 8 और 0.8 और 80% हम उसको कह सकते हैं।
Now, next question, two securities A and B have variance 13 and 15 respectively. Expected return इनका दे रखा 15% and 18% और इनका कोवेरियंस दे रखा है आपको 3. अब हमें बताना है कि क्या रिटर्न और रिस्क होगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट 70:30 की रेशियो में है. तो अगेन देखिए, पहले मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में किया होगा. एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15 और इसका वेट है 0.7. सिक्योरिटी ए की बात करें तो W1IRI क्या हो जाएगा 15 इंटू 0.7 10.5. सिमिलरली पोर्टफोलियो बी का क्या हो जाएगा 18 इंटू 0.3 5.4. इसका टोटल हो जाएगा 15.9 विच इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो रिस्क यही हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसके बेस से पोर्टफोलियो रिस्क निकाल देंगे. The next question, this is giving you the return and risk of two securities A and B. रिटर्न है आपका 10%, 12%, रिस्क है आपका 20%, 25%. इनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा 0.5. अब इन्वेस्टर को दो पोर्टफोलियो क्रिएट करने, एक तो 75% ए और 25% बी और एक 25% ए 75% बी, और बताना है कि कौन सा बेटर है. अब देखो कौन सा इसमें से एक्सेप्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, दोनों पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकालेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं. दोनों पोर्टफोलियो का ऑप्शन नंबर बी का रिटर्न है 10.5% और रिस्क है 18.92%. और ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 का हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है 11.5% और इसका रिस्क आया 21.69%. अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो रिटर्न रिस्क है, साथ में हम लोग सीवी निकालते हैं. सीवी क्या होता है, रिटर्न डिवाइड बाय रिस्क. तो अगर मैं परसेंटेज में करती तो इंटू 100 कर देती तो 55 और 53% आ जाता. नो रिटर्न बाय रिस्क अगर मैंने निकाला, ओके यहाँ पर मैंने क्या किया, रिटर्न बाय रिस्क किया. अगर रिस्क पर रिटर्न करते हैं, सीवी में हम लोग रिस्क बाय रिटर्न करते हैं, तो जितना कम उतना इतना अच्छा होता है. यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न बाय रिस्क किया है. आप सीवी की तरीके से भी कर सकते हो, रिस्क बाय रिटर्न भी कर सकते हो. तब इसको पिक करोगे, जो कम होगा उसको पिक करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर रिटर्न बाय रिस्क करेंगे तो रिटर्न बाय रिस्क का मतलब क्या है कि द रिटर्न यू आर गेटिंग पर यूनिट ऑफ रिस्क, एक यूनिट रिस्क के लिए आपको रिटर्न कितना मिल रहा है. यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन 1 में 0.55 और ऑप्शन 2 में मिल रहा है 0.53. तो किसमें ज्यादा मिल रहा है रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, सेम डिग्री ऑफ रिस्क के लिए रिटर्न ऑफ ऑप्शन 1 इज ग्रेटर. देयरफॉर द इन्वेस्टर मस्ट चूज ऑप्शन ए. ओके, अब बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को. लास्ट टॉपिक फिर से करा दो. एक बुक बेस्ट नहीं होती है. कुछ आपको जो बुक अगर आप देखेंगे तो आरपी रुस्तगी भी अच्छी है और आपकी जो है वनिता त्रिपाठी की बुक भी अच्छी है, आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं. अब मुझसे आयुषी ने पूछा है कि क्वेश्चन वापस शो कर दो. कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आयुषी? पवन, कल हमने रिस्क रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी किया था. एक सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न कैसे निकालते हैं, उसके बाद पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न आता है. कल हमने सिक्योरिटी एनालिसिस किया था. इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है थियरी का मैं खुद बताती हूँ. जैसे इसमें आपका कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है प्लस हैरी मार्कोविट्स मॉडल, उसके एजम्पशंस, वो आपका थियरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जितनी भी आपकी कैपम की एजम्पशन है, डिफरेंस बिटवीन एसएमएल एंड सीएमएल, ये आपके इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, नाउ कैन आयुषी, आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे जो दोबारा शो करना है, प्लीज राइट.
जो अभी प्रैक्टिस के लिए दिखाया था, मैं क्वेश्चन 1, ओके ओके, आई एम शोइंग। अब यहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, देखिए वो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, an investor is considering investment in securities X and Y whose details are given below। एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है आपको 15% और 16, सॉरी 13% और 16%, रिस्क दे रखा है 4% और 7%। अब हमें वेट्स दे रखे हैं, एक्स में 30% और वाई में 70% इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो अब मुझे एक तो रिटर्न निकालना है इस पोर्टफोलियो का, एक मिनट। मेरे को तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है इस पोर्टफोलियो का। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? वेटेड एवरेज ऑफ द रिटर्न, यानी कि डब्ल्यू ए इंटू द रिटर्न ऑफ ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू रिटर्न ऑफ द बी। अब देखो आपका जो एक्स है, ए और बी नहीं है, एक्स यहाँ पे एक्स 30% है, 30% इंटू द रिटर्न ऑन एक्स विच इज 13%, 30 मतलब 0.3 इंटू 13 प्लस 0.7 इंटू 16। इस तरीके से हम पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं, जो कि आगे 15.1%। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन कोरिलेशन इज -1, अगर कोरिलेशन -1 है तो रिस्क पोर्टफोलियो का कितना आएगा? ये फॉर्मूला है रिस्क का, मैंने बस इसमें वेट, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन की जगह पे -1 किया। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन कोरिलेशन इज +1, तो जहाँ पे कोरिलेशन वैल्यू -1 की आपकी +1 कर देंगे, बाकी चीजें सेम रहेगी। और आपका रिस्क जो है, जब कोरिलेशन -1 था तो 3.7% था, कोरिलेशन 1 होने पे ये बन गया 6.1%। सो वी कैन से दैट as the degree of correlation increases or become positive or negative to positive, the risk of the portfolio increases. So this is question number 1. ओके तान्या, अगर बच्चे मैं एक्चुअली जो क्वेश्चंस लेती हूँ ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। मैंने इनकी फिगर्स चेंज करी हुई है, और कई क्वेश्चंस तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के ही है। ठीक है, और आप अगर बुक में देखेंगे तो बुक में भी पीछे गिवन होगा। आई कैन डू वन थिंग, मैं आपको एक आई शो यू द स्क्रीन। उस स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। आई शो यू, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसका मैंने आंसर भी नीचे लिख रखी है।
तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 40% इन द ऑफ द फंड्स इन भारत लिमिटेड एंड 60% इन इंडिया लिमिटेड। तो जगह आपने इन्वेस्टमेंट करी है 40% 60%, तो आपके वेट आकर 0.4 0.6। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू कंपनीज इज गिवन। आपको इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, भारत के 14% और इंडिया लिमिटेड का 22%, और यहाँ पे रिस्क है 7% 10%। तो हमें पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न निकालना है बाय अज्यूमिंग। देखो आपको रिस्क रिटर्न के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, वेट चाहिए होता है, कोरिलेशन चाहिए होता है। वेट हमें दे रखा है 0.4 0.6, कोरिलेशन हम +1, तब क्या होगा, कोरिलेशन 0 होगा तब क्या होगा, और आपका कोरिलेशन -1 होगा तब क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, ये वही है, बस फॉर्मूले वो यूज करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज आल्सो। आपको सीएमएल वगैरह के क्वेश्चंस और शो कर देती हूँ, आप उसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लाइक if the risk-free rate is 5% and return on Sensex is 15% with a risk of 8%. Sensex क्या है? It is a market index. तो जो Sensex पे रिटर्न है 15%, that is your RM, और उसका जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है 8%. Find the proportion of funds to be invested in each of the above two alternatives so as to have a portfolio with a return of 13%. देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, ये आपका क्या शो कर रहा है, बेसिकली इन दोनों पोर्टफोलियोज को एक अलग अलग सिक्योरिटी की तरह लिया। आपको रिस्क फ्री एसेट में भी इन्वेस्ट करना है। रिस्क फ्री एसेट का रिस्क कितना हो गया, 0, रिटर्न है 5%। सेंसेक्स में रिस्क है आपका 8% और रिटर्न है 15%। अब हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसे कि मेरा 13% का टोटल रिस्क टोटल रिटर्न हो। तो मैं क्या करूंगी, लेट द वेटेज ऑफ रिस्क फ्री एसेट बी W, and the weightage of Sensex will be 1 minus W. Now W into 5 plus 1 minus W into 15 should be equal to 13. आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिस्क फ्री एसेट का W आ जाएगा 20% और मार्केट पोर्टफोलियो में आ जाएगा आपका 80%, और जो ऐसे पोर्टफोलियो बनेगा, मतलब ये वेट आ गए। अब उसके बाद अगर आप उसका रिस्क निकालेंगे उस पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो का रिस्क आएगा 6.4%। ये 2015 का क्वेश्चन है। Okay. Now, from the following data given below, find which of the following securities are overpriced or underpriced using SML equation. देखो आपको 5 सिक्योरिटी दे रखी, PQ RST, और इनका बीटा दे रखा है आपको, और रिटर्न दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मार्केट इंडेक्स का रिटर्न है 11%, दैट इज योर RM, और रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न है 5%, दैट इज योर RF। तो RM माइनस RF आपको यहाँ से मिल जाएगा, बीटा आपको यहाँ पे गिवन है इंडिविजुअल का। तो आप क्या करेंगे, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा करेंगे, तो आप हर सिक्योरिटी का SML के अकॉर्डिंग रिटर्न निकालेंगे, फिर बता सकते हैं कौन सा ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया था। विवेक, तुमने कल भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पूछा था। बेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला एग्जांपल मैंने अभी भी करवाया है आपको। आयुषी ने भी कहा था, मैंने रिपीट किया था, वो वही वाला है। रिकॉर्डेड एक्सेस क्लासेस का एक्सेस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो एस वेल फोन करके पता करो, मुझे कोई आइडिया नहीं है।
बच्चे तानिया ये मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद से नोट्स जो है बनाए हुए हैं एंड दीज आर अंडर पब्लिकेशन, तो आई कांट शेयर इट, ठीक है। और इसी वजह से ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो ये किसी बुक से नहीं लिए हुए हैं। मैंने क्वेश्चंस जो 10 ईयर के हैं जिनके आगे लिखा है कि वो बीकॉम ऑनर्स किस ईयर में आए हैं, वो 10 ईयर क्वेश्चंस है। जिनके आगे नहीं लिखा हुआ वो मैंने खुद से बनाए हुए मेरे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए ये आपको नहीं मिलेंगे किसी बुक में। हाँ लेकिन जब मैं कराती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का। जैसे कंटेंट तो सभी बुक्स में सिमिलर होता है, थ्योरी तो सब में सेम है, आप कहीं से भी पढ़ोगे वो थ्योरी आपकी सेम ही रहेगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिस्क फ्री नहीं होते। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम रिस्क फ्री नहीं कह सकते, उनमें से कुछ बॉन्ड्स को हम रिस्क फ्री कहते हैं। चलो आपने ये कहा, चलो ठीक है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे रिस्क फ्री हो गए, तो जैसे अभी ये हमने किया नहीं है रिस्क फ्री वाला, वही वाला होगा वो, उसमें हमारा रिस्क जीरो हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक कुंदन ने ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें ग्रुप का लिंक गिवन है, दैट इज फॉर दी डाउट्स। आप लोग आपस में एक दूसरे के लिए अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लिंक ग्रुप बनाया है दैट यू कैन ज्वाइन। सिमिलर क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी हो जाते हैं, और क्वेश्चंस आपको जो है वहां पे भी मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे। else you want to ask? कल हम करेंगे आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स की वैल्यूएशन, ठीक है। तो विल सी यू टुमारो। हाँ कल की क्लास हो सकता है मेरी 5-10 मिनट्स लेट हो जाए, सो जस्ट वेट।